Hello students, I welcome you all on Yourpedia Education. So today I am going to give you one job update. So that is from Uttar Pradesh. So some vacancies have been advertised by Uttar Pradesh Public Service Commission. So the notification is with me. So you can see here now. So the last date, so there are many posts advertised, I will say, for different departments, and the last date for the deposition of application fees, so that is 1st July, and last date for submission of online application, so that is 5th July. ठीक है, तो 5th जुलाई तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, और फीस की जो लास्ट डेट है सो दैट इज अप टू 1st जुलाई. Okay, so you can see this notification. I will also attach this notification in the description of this video. And Uttar Pradesh UPPSC has advertised many vacancies, like you can see in UP Horticulture and Food Processing Department. So assistant chemist, soil chemist, horticulturist, assistant horticulturist, fruit breeder, flower breeder, scientist. So there are various posts advertised. Okay, and the essential qualification are being given here: MSc Agriculture degree. Okay, and for similarly for all the serial numbers you are given with all the essential qualifications. So mostly they are requiring, so that is MSc Agriculture. Okay, so for agriculture I will say those students who have done MSc in agriculture, so they can apply for these posts. Okay, now these are the essential qualification. Now there are some preferential, or I will say desirable. So they are not compulsory. They are not compulsory, but they are desirable or preferential. Okay, so those candidates who served in territorial army for minimum period of 2 years or obtained a B certificate of NCC shall, ठीक है, shall be given preference in the matter of direct recruitment. Age is 21 years to 40 years. तो ये डिजायरेबल है, प्रेफरेंशियल है. अगर ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ऑफकोर्स जो सिलेक्शन होगा, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही वो कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर एमएससी किया हुआ एग्रीकल्चर में, तो उनके लिए ये पोस्ट आई हुई है. ठीक है, सो दैट इज दिस यूपी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट. So similarly you can see that for general the fees is rupees, I will say 105, and for OBC also 105. For SC ST it is 65. For handicapped it is 25. Okay, and for women also you can see here, so according to 1 to 4, according to the original category mentioned from serial number 1 to 4. So similarly men and women 105, 105, 65, 65 according to their category. Okay, and so online you have to fill. Now see I will say some vacancies for engineers in this institute, in state government institute, I will say, of Uttar Pradesh, that is State Planning Institute, Naveen Prabhag, Uttar Pradesh. कहाँ पे है? लखनऊ में है. ठीक है, तो वन पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट इंजीनियरिंग. ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं तो उसके लिए वन पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट, सो दैट इज इन स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट. ओके, सो ग्रेड पे इज 4600 and number of posts are 1, so that is for general candidates. ठीक है, a candidate for what are the essential qualification? So the must possess the following qualification: degree in, I will say, civil, mechanical or electrical or agriculture or industrial or architecture from an institute. Okay, तो अगर किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किया हुआ बीटेक है कोई, ठीक है, बीटेक है, या सिविल में है, या इलेक्ट्रिकल में, या एग्रीकल्चर में है, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल हैं, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसके लिए. प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दोबारा से वही दिया हुआ है. ठीक है, so accordingly you can see next one is इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन. तो इसमें दो पोस्ट हैं. ठीक है, जनरल रिक्रूटमेंट, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज that is postgraduate degree in mathematics or mathematical statistics or commerce or economics or statistics with at least 55% marks, with at least 55% marks. Okay, तो अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मैथ्स में, ठीक है, स्टैट्स में किया हुआ है, कॉमर्स में किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, विद एट लीस्ट 55% मार्क्स, तो वो एलिजिबल हैं इसके लिए. ठीक है, or 2 years post graduate diploma in stats from an institute recognized by the government. ठीक है, इसके अलावा क्या है? नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए. अगेन
डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट वन इज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। ओके, अगेन इसमें सम वैकेंसीज आर देयर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। Okay, so you can see here, so number of vacancies you can see. Essential qualification is electrical, civil and mechanical. Electrical, civil and mechanical में होना चाहिए आपका डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा जो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि क्या हो डिग्री इन द इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच, ठीक है, रिस्पेक्टिव ब्रांच में क्या हो इनका डिग्री हो, ठीक है, और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, और अ डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो इन इंजीनियरिंग। ओके, एंड सेकंड इज 5 year एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड 3 years एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स ऑफ वर्कशॉप और इंडस्ट्री। तो अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वर्कशॉप और इंडस्ट्री का तो वो एलिजिबल है। सिमिलरली अगर किसी ने डिग्री किया हुआ है इन रेलिवेंट ब्रांच, ठीक है, तो अगर डिग्री वालों के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट इज 3 years, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। 3 years का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, वर्कशॉप और इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट वन, तो ये मेडिकल से रिलेटेड आ गई, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, एलोपैथी से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट भी एडवर्टाइज की गई है, मेडिकल एजुकेशन से भी, ठीक है। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड भी काफी सारी पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आई हैव आल्सो टोल्ड यू। सिमिलरली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, तो अगर किसी के पास डिग्री है आर्किटेक्चर में, सिविल में, ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज 3 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्लानर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये सारा इसमें आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो इसमें मेडिकल वालों के लिए भी है, आई विल से इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग भी अगर किसी ने सिविल में किया हुआ है, आर्किटेक्चर में किया हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसीज हैं। ओके, सो यू कैन अप्लाई, एंड एप्लीकेशन की भी स्टेप्स बताए हुए हैं उन्होंने कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 3 stages। ओके, सो व्यू इंस्ट्रक्शन होगा पहले, अगर आप यहां पर जाएंगे, when the candidate clicks all notification or advertisement on the UPPSC website, so that is this uppsc.up.nic.in, okay, the online advertisement shall be automatically displayed and there shall be 3 parts: user instruction, view advertisement, apply. Okay, so apply for online application, so this will be first stage, candidate has to register. Okay, then there will be second stage, and in second stage you have to do the payment. Okay, so students इसमें आप देख सकते हैं जैसे स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूशन में, आई विल इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं। ओके, देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर वैकेंसीज बताई इंजीनियरिंग की, ठीक है। दोबारा से बताऊंगा, किसी ने अगर एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, एग्रीकल्चर में अगर एमएससी की हुई है, तो उनके लिए ये पोस्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट में है इंजीनियर्स के लिए अगर मैं बात करूं। देन उसके बाद मैंने यहां पर बताया इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन में, और इसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी इंजीनियर्स के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। ओके, एंड सिमिलरली फॉर मेडिकल वालों के लिए भी, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये जॉब अपडेट आपको पता लग गया होगा। Okay, so go to their website, and I will also attach this notification in the description of this video, and you can read it and you can apply according to your eligibility. So if you like this video, so please like it more and share it more.